خوش آمدید۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ معاشرے خود کو کیسے منظم کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ معیشت، سماجی طبقہ، جنس، نسل، یہاں تک کہ دنیا میں ممالک کی جو درجہ بندی ہے، یہ سب چیزیں وسائل اور طاقت کی تقسیم پر کیسے اثر ڈالتی ہیں۔ یہ وہ کافی پیچیدہ موضوع ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد کریش کورس سوشیولوجی سیریز کے کچھ ٹرانسکرپٹس پر ہے، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان ذرائع سے اہم نکات نکالیں اور سمجھیں کہ یہ سماجی ڈھانچے جو اکثر ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری زندگیوں کو کیسے شکل دیتے ہیں اور بڑے پیمانے پر کیا نمونے بناتے ہیں۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ شاید آپ کی کافی کی پسند بھی صنفی تصورات سے جڑی ہو۔ ممکن ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معیشت۔ اچھا، یہ صرف پیسوں کا حساب کتاب نہیں ہے، یہ ایک سماجی ادارہ ہے جو چیزوں کی پیداوار، ان کا استعمال، تجارت، ان سب کو منظم کرتا ہے۔ جی بالکل، اور ذرائع اسے عام طور پر 3 شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک پرائمری شعبہ جو آپ سمجھیں زمین سے خام مال نکالتا ہے، کسان ہو گئے، کانکن ہو گئے۔ پھر سیکنڈری شعبہ جو اس خام مال سے چیزیں بناتا ہے، فیکٹریوں وغیرہ میں۔ اور تیسرا ہے ٹرشری شعبہ، یعنی خدمات، ڈاکٹر، استاد، سافٹ ویئر انجینئر، یہ سب اسی میں آتے ہیں۔ صحیح۔ اور زرعی اور خاص طور پر صنعتی انقلاب نے تو سب کچھ بدل دیا۔ اسی سے پھر سرمایہ داری اور سوشلزم جیسے بڑے نظام سامنے آئے۔ بالکل، سرمایہ داری کا جو بنیادی خیال ہے وہ نجی ملکیت، منافع کی خواہش اور مقابلہ ہے۔ ایڈم اسمتھ نے اسے غیر مرئی ہاتھ کہا تھا کہ ہر کوئی اپنے فائدے کا سوچے گا تو معاشرے کا بھلا ہوگا۔ لیکن کیا یہ واقعی ایسے کام کرتا ہے؟ مطلب خالص سرمایہ داری؟ نہیں، دراصل خالص سرمایہ داری بہت کم ہے۔ اکثر مسائل ہوتے ہیں، مارکیٹ صحیح کام نہیں کرتی، اجارہ داریاں بن جاتی ہیں۔ اسی لیے امریکہ جیسی زیادہ تر معیشتیں مخلوط ہیں۔ حکومت کچھ نہ کچھ دخل دیتی ہے، تعلیم، صحت، کم از کم اجرت وغیرہ۔ اچھا، اور دوسری طرف سوشلزم اجتماعی ملکیت اور مقاصد پر زور دیتا ہے۔ مقصد تو تھا زیادہ برابری لانا، لیکن عملی طور پر جہاں اسے مکمل نافذ کیا گیا وہاں اکثر سیاسی طاقت چند لوگوں کے پاس آ گئی اور معاشی ترقی بھی کم رہی، اگرچہ آمدنی میں فرق شاید کم تھا۔ اور آج تو ہم انفارمیشن ریولوشن کے دور میں ہیں۔ اب معاشیت زیادہ تر علم، ڈیٹا اور خدمات پر چل رہی ہے، چیزیں بنانے سے زیادہ۔ ٹھیک، اور یہ معاشرت ظاہر ہے سماجی طبقے سے براہ راست جڑی ہے۔ طبقہ صرف آمدنی نہیں ہے، یہ تو پورا ایک وہ طرز زندگی ہے۔ جی ہاں، اقدار، مواقع، سب کچھ۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ کلاس سوشلائزیشن یعنی طبقے کے حساب سے تربیت بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ والدین انجانے میں بچوں کو اپنے طبقے کی چیزیں سکھاتے ہیں۔ اینٹ لمو کی تحقیق کا ذکر ہے یہاں پہ، وہ کیا کہتی ہیں؟ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو اعلیٰ متوسط طبقے کے والدین ہیں وہ اکثر کنسرٹڈ کلٹیویشن کرتے ہیں، مطلب وہ بچوں کی زندگی میں بہت زیادہ شامل ہوتے ہیں، انہیں مختلف کلاسوں میں بھیجتے ہیں، ان سے بہت بات چیت کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں۔ ایک طرح سے ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش۔ بالکل، جبکہ ورکنگ کلاس والدین لارو کے مطابق نیچرل گروتھ کا طریقہ اپناتے ہیں۔ وہ بچوں کو زیادہ آزادی دیتے ہیں کہ خود کھیلیں، خود سیکھیں، لیکن بڑوں کی بات ماننے پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ اچھا، یہ فرق تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نظر آتا ہوگا، جیسے وہ بروکولی والی مثال۔ جی بالکل، اگر بچہ بروکولی نہیں کھا رہا تو متوسط طبقے کے والدین شاید سمجھائیں گے، بحث کریں گے، ورکنگ کلاس والدین شاید سیدھا حکم دیں گے۔ یہ انداز پھر آگے اسکول، دفتر وغیرہ میں ان کے رویے پر اثر ڈالتا ہے۔ تو یہ فرق صرف بچپن کا نہیں، یہ تو زندگی بھر ساتھ چلتا ہے، مواقع پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یقیناً، تعلیم کو ہی لے لیں۔ امریکہ جیسے ملک میں اسکولوں کی فنڈنگ اکثر مقامی ٹیکس پر ہوتی ہے، تو جہاں امیر لوگ رہتے ہیں وہاں کے اسکولوں کو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ مطلب بہتر سہولیات، بہتر اساتذہ۔ جی، چھوٹے کلاس سائز، اور پھر امیر گھرانوں کے بچوں کا مہنگے نجی اسکولوں اور پھر اچھی یونیورسٹیوں میں جانے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان یونیورسٹیوں میں ایک اور چیز ہے لیگیسی ایڈمیشنز۔ اچھا، وہ جو سابقہ طالب علموں کے بچوں کو ترجیح ملتی ہے۔ ہاں، اس سے بھی عدم مساوات بڑھتی ہے۔ اور صحت کے معاملے میں کیا وہاں بھی ایسا ہی ہے؟ بالکل، ذرائع واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ زیادہ آمدنی والے لوگ اوسطاً زیادہ لمبی اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے پاس بہتر ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، اچھے ڈاکٹروں تک رسائی ہوتی ہے۔
और वो सेहतमंद तर्ज जिंदगी भी शायद ज्यादा आसानी से अपना सकते हैं। जी, जबकि कम आमदनी वाले इलाकों में अक्सर फूड डेजर्ट्स होते हैं, मतलब ताज़ा सेहत बख्श ग़िज़ा आसानी से नहीं मिलती, और उनके काम भी अक्सर ज्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि सियासी नजरियात भी तबके से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, अमेरिका में एक रुझान देखा गया है। अमीर लोग मुआशी तौर पर खुदामत पसंद, मतलब कम टैक्स, कम हुकूमती दखल, लेकिन समाजी मसाइल पर ज्यादा लिबरल, और कम आमदनी वालों में अक्सर इसका उल्टा होता है। और सियासी ताकत भी ज्यादातर ऊपर वालों के पास ही होती है। जाहिर है। तो फिर सवाल ये है कि क्या इस निजाम में ऊपर जाने का कोई रास्ता है, जिसे सोशल मोबिलिटी या समाजी नकलो हरकत कहते हैं? अमेरिका में तो वो फर्श से अर्श तक वाली कहानी बहुत मशहूर है। हाँ, ये तस्वर बहुत मकबूल है, और तारीखी तौर पर देखा जाए तो मजमूई तौर पर लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर हुआ है। इसे एब्सोल्यूट मोबिलिटी कहते हैं। लेकिन ज़राए एक तशवीशनाक बात बता रहे हैं। पिछली कुछ दहाइयों में, शायद 70 की दहाई के बाद, ये ऊपर जाने की रफ्तार कम हुई है। कम हुई है? कैसे? एक तहकीक का हवाला है कि 1940 में पैदा होने वाले तकरीबन 90% अमरीकियों ने अपने वालिदैन से ज्यादा कमाया, लेकिन 1980 में पैदा होने वालों में ये सिर्फ 50% रह गया। मतलब आजकल वालिदैन से बेहतर कमाना ज्यादा मुश्किल हो गया है। और क्या ये सबके लिए बराबर है या इसमें भी फर्क है? नहीं, बराबर नहीं है। ज़राए कहते हैं कि सामाजी हैसियत ऊपर और नीचे दोनों तरफ चिपकने वाली होती है। मतलब गरीब है तो गरीब रहने का इम्कान ज्यादा, अमेरिका में तकरीबन 36%, अमीर है तो अमीर रहने का इम्कान ज्यादा, तकरीबन 30%। अच्छा। और फिर नस्ल और जिन्स का भी फर्क है। बाल्टीमोर की एक तहकीक का जिक्र है कि कम आमदनी वाले स्याफाम बच्चे सफेद फार्म बच्चों के मुकाबले में बड़े होकर नीचे गिरने का ज्यादा इम्कान रखते थे, चाहे बाकी हालात एक जैसे हों। और खवातीन ने मजमूई तौर पर तो तरक्की की है, लेकिन निचले तबके की खवातीन अब भी मर्दों के मुकाबले में वहीं फंसी रह सकती हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि शादीशुदा होना अक्सर ऊपर जाने में मदद देता है, शायद 2 आमदनियों की वजह से। तो मईशत और तबके के ये ढांचे तो बहुत मजबूत लगते हैं। अच्छा, अब जरा जिन्स यानी जेंडर की तरफ आते हैं। ये भी समाजी दर्जाबंदी की एक अहम बुनियाद है। अक्सर लोग सेक्स और जेंडर को एक ही समझते हैं। क्या फर्क है इनमें? जी, ये बहुत अहम फर्क है। सेक्स का ताल्लुक हयातियाती फर्क से है, क्रोमोसोम्स, तौलीदी आज़ा, हार्मोन्स। लेकिन ये भी सादा नहीं है। इंटरसेक्स अफराद भी होते हैं जिनकी खुसूसियात रिवायती मर्दाना या जिनाना नहीं होती। ठीक है। उसके मुकाबले में जेंडर जो है वो मुकम्मल तौर पर एक समाजी तामीर है। ये वो समाजी नफ्सियाती तवक्कुआत, किरदार, रवैये हैं जो मुआशरा मर्दों और औरतों के लिए मुनासिब समझता है। तो ये मुआशरा बनाता है, मतलब ये बदल भी सकता है? बिल्कुल, ये वक्त और सकाफत के साथ बदलता रहता है। और ये तामीर अक्सर गैर मसावी होती है, जिसे जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन यानी सिन्फी दर्जाबंदी कहते हैं। ज्यादातर माशरों में पदरसरी निज़ाम या पेट्रियार्की नजर आता है, मर्दों का गलबा है। यहाँ रेविन कॉर्नेल के नजरियात अहम हैं। उन्होंने हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी का तस्वुर दिया। अच्छा, ये क्या है? गालिब मर्दानगी? हाँ, मतलब मर्दानगी का वो गालिब तस्वुर जो माशरे में मिसाली समझा जाता है। जैसे एक्शन फिल्म का हीरो, मजबूत, कमाने वाला, जज्बात छुपाने वाला। और इसके मुकाबले में एम्फसाइज्ड फेमिनिटीज, यानी नस्वानियत की वो शक्लें जो इस मर्दाना नजरिए के मुताबिक हों। कॉर्नेल कहती हैं कि इस निज़ाम से मर्दों को कुछ फायदे मिलते हैं जिन्हें वो पैट्रियार्कल डिविडेंड्स कहती हैं। और ये किरदार हम सीखते कैसे हैं? जेंडर सोशलाइजेशन कैसे होती है? ये तो हर जगह होती है। खानदान से शुरू होती है। लड़कों को नीली चीजें, लड़कियों को गुलाबी, खिलौने अलग, तवक्कुआत अलग। मीडिया का भी बड़ा किरदार होगा? बहुत ज्यादा। मीडिया मुसलसल सिन्फी दकियानूसी तस्वुरात दिखाता है। स्कूलों में भी होता है, मज़ामीन के इंतखाब से लेकर असातिज़ा के रवैये तक। अमेरिका के टाइटल 9 कानून का जिक्र है, इसने कुछ बदला? हाँ, उसने तालीमी इदारों में जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक को रोका। खास तौर पर ख़वातीन के लिए खेलों और दूसरे शोबों में मौके बढ़े। सेली राइट जो खलाबाज बनी, उनकी मिसाल दी गई है कि उन्हें टेनिस स्कॉलरशिप इसी कानून की वजह से मिली थी। लेकिन काम की जगह पर तो अब भी चैलेंजेस हैं।
पिंक कॉलर जॉब्स का जिक्र है। जी, वो नौकरियां जो रिवायती तौर पर खवातीन से मंसूब हैं, नर्सिंग, टीचिंग, सेक्रेटरी, इनमें अक्सर तनख्वाहें कम होती हैं। और वो शीशे की छत वाली बात, ग्लास सीलिंग? बिल्कुल, वो गैर मरी रुकावट जो खवातीन को आला तरीन ओहदों तक जाने से रोकती है। देखे ना, सीईओज या सियासत में आला सतह पर खवातीन अब भी कम हैं। और तनख्वाह का फर्क, जेंडर वेज गैप? वो भी एक हकीकत है। अमेरिका में सफेद फार्म औरत सफेद फार्म मर्द के मुकाबले औसतन 80 सेंट कम कमाती है, स्याह फार्म और हिस्पानी खवातीन और भी कम। इसकी वजह सिर्फ इम्तियाजी सलूक है या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ इम्तियाजी सलूक नहीं, ज़राए कहते हैं कि इसमें तालीम, करियर का इंतखाब, खवातीन अक्सर कम तनख्वाह वाले शोबों में होती हैं, काम के घंटे, तजर्बा, ये सब शामिल है। लेकिन अहम बात यह है कि ये इंतखाब भी तो समाजी दबाव से आज़ाद नहीं होते। वो आर्ली होचचाइल्ड वाली सेकंड शिफ्ट वाली बात? जी, कि मुलाजमत पेशा खवातीन घर आकर एक और पूरी शिफ्ट करती हैं, घर के काम, बच्चों की देखभाल, वो आज भी काफी हद तक दुरुस्त है। ये भी अहम है कि इस निज़ाम के मनफी असरात मर्दों पर भी होते हैं। बिल्कुल, मर्दानगी का दबाव, जहनी सेहत के मसाइल, खुदकुशी की शरह, खतरनाक रवैये, ये सब भी इसी से जुड़ा है। इन मसाइल को समझने के लिए मुख्तलिफ नजरियात भी हैं, जैसे साख्तियाती फालियत पसंदी। जी, वो रिवायती किरदारों को माशरती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी समझते थे। फिर अलामती तामुल पसंदी है, जो देखती है कि हम रोज़मर्रा में जेंडर कैसे करते हैं। और तनाज़ुआती नजरिया? वो पदरसरी निज़ाम को ताकत की जंग के तौर पर देखता है। इसी से जुड़ा इंटरसेक्शनैलिटी का अहम तस्वुर है। यानी ये देखना कि जिन्स, नस्ल, तबका, ये सब मिलकर कैसे अदम मुसावात पैदा करते हैं। बिल्कुल, एक स्याह फार्म वर्किंग क्लास औरत का तजर्बा सफ़ेद फार्म मुतवस्सत तबके की औरत से मुख्तलिफ होगा। और फिर फेमिनिज्म की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो इन मसाइल पर बात करती हैं। ठीक है, अब हम नस्ल, रेस और कौमियत, एथनिसिटी की तरफ आते हैं। ये भी दर्जाबंदी की एक बहुत ताकतवर बुनियाद है। क्या नस्ल भी जेंडर की तरह एक समाजी तामीर है? जी, ज़राए इस पर बहुत जोर देते हैं। नस्ल का ताल्लुक उन जिस्मानी खुसूसियात से है जिन्हें मुआशरा अहम समझता है, जिल्द का रंग, बाल वगैरह। लेकिन हरातियाती तौर पर इंसानों को ऐसे वाज़े अलग ग्रोहों में बांटा नहीं जा सकता, और कौन सी खुसूसियत अहम है ये भी मुआशरा तय करता है। जैसे वो वन ड्रॉप रूल वाली मिसाल? हाँ, कि अगर किसी में ज़रा सा भी अफ्रीकी खून है तो उसे स्याह फार्म समझा जाएगा। ये तो समाजी तारीफ हुई। और कौमियत, एथनिसिटी? इसका ताल्लुक मुश्तरका सकाफती वर्से से है, ज़बान, रिवायात, मजहब, कौमी पस मंज़र। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही नस्ल के लोगों की कौमियतें मुख्तलिफ हों? यकीनन, जैसे जापानी और कोरियन अमेरिकी, उन्हें अमूमन एशियाई नस्ल में शुमार किया जाता है, लेकिन उनकी कौमियतें, ज़बानें, सकाफतें अलग हैं। और हिस्पानवी? वो नस्ल नहीं, कौमियत है। हिस्पानवी ज़बान बोलने वाले मुमालिक से ताल्लुक़, जबकि लातीनी या लातीनेक्स का ताल्लुक लातीनी अमेरिका के जोग्राफियाई इलाके से है। अच्छा, और अक़लियत यानी माइनॉरिटी की तारीफ क्या है? क्या ये सिर्फ तादाद का मामला है? नहीं, समाजियात में अक़लियत का मतलब है वो गिरोह जो किसी जिस्मानी या सकाफती फ़र्क की वजह से नुमाया हो और जिसे मुआशरे में कम ताकत और मराहत हासिल हो। ज़रूरी नहीं है कि वो तादाद में कम हो। जैसे नस्ल परस्त जनूबी अफ्रीका में सियाफाम अक्सरियत में थे, लेकिन ताकत ना होने की वजह से अक़लियत समझे जाते थे। अमरीका जैसे मुमालिक अब अक़लियती अक्सरियत वाले बन रहे हैं। जी हाँ, जहाँ गैर हिस्पानवी सफ़ेद फार्म आबादी 50% से कम हो रही है। अमरीकी मर्दमशुमारी भी नस्ल की कैटेगरीज बदलती रहती है, जो खुद सबूत है कि ये समाजी तामीर है। नस्ल और कौमियत से जुड़े कुछ मनफी तसव्वुरात भी हैं, जैसे तासुब, इम्तियाजी सुलूक। जी, तासुब किसी पूरे ग्रोह के बारे में एक सख्त गैर मुनसिफाना राय है। ये अक्सर दकियानूसी तसव्वुरात, स्टीरियोटाइप्स पर मबनी होती है। यानी किसी ग्रोह के बारे में बहुत सादा और गलत किस्म के ख्यालात। बिल्कुल, और नस्ल परस्ती इससे आगे है। ये अकीदा कि एक नस्ल दूसरी से फितरी तौर पर बरतर है, ये खुली भी हो सकती है और पोशीदा, लाशऊरी भी। वो गन स्टडी का जिक्र है जोशुआ कोरेल की। हाँ, कि लोग लाशूरी तौर पर भी तासुब का शिकार हो सकते हैं। जी, कि गैर मुसल्ला स्याह फार्म को गलती से मुसल्ला समझकर गोली चलाने का इम्कान ज्यादा होता है। और इम्तियाजी सुलूक, डिस्क्रिमिनेशन, फिर वो अमल है
जब इन तासुबात की बुनियाद पर मुख्तलिफ सलूक किया जाए। और ये सिर्फ इनफरादी नहीं होता, इदारा जाती नस्ल परस्ती। ये बहुत अहम तस्वुर है। कार्माइकल और हैमिल्टन ने बताया कि ये माशरे के इदारों, स्कूल, पुलिस, अदालत, बैंक, नौकरी के काम करने के तरीकों में शामिल होता है। ज़रूरी नहीं कि लोग ज़ाती तौर पर मुतासिब हों, लेकिन निज़ाम ही ऐसा बना होता है कि अक़लियतों को नुकसान हो। तो ये एक चक्कर बन जाता है। जी, एक शैतानी चक्कर। तासुब से इम्तियाजी सलूक, उससे पसमानदगी, और वो पसमानदगी फिर तासुब को जवाज़ देती नजर आती है। इसकी वजूहात के बारे में भी कई नज़रियात हैं, जैसे कुर्बानी का बकरा बनाना या तनाज़ुआती नज़रिया कि ताकतवर गिरोह इसे अपना गुलबा कायम रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो मुआशरे के अंदर की बात हुई। अब जरा आलमी सतह पर देखते हैं। आलमी दर्जाबंदी या ग्लोबल स्ट्रैटिफिकेशन, ये क्या है? इससे मुराद है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान दौलत, ताकत और मियारे ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा फ़र्क पाया जाता है। पहले पहली दुनिया, तीसरी दुनिया जैसे अल्फाज थे, अब वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। तो अब कैसे दर्जाबंदी होती है? अक्सर मजमूई कौमी आमदनी फी कस GNI पर कैपिटा की बुनियाद पर ज़्यादा आमदनी वाले, मुतवसत आमदनी वाले, बलाई और ज़री और कम आमदनी वाले ममालिक, इनमें शहरों में रहने वालों का तनासुब, सनत, सेहत, तालीम, इन सब में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ मुतलक खुरबत और निस्बतन खुरबत का फ़र्क भी अहम है। जी हाँ, मुतलक गुर्बत तो वो है जहाँ बुनियादी ज़रूरियात पूरी ना हो, जान का ख़तरा हो। निस्बतन गुर्बत अपने माशरे के मेयार के लिहाज से गरीब होना है। और इस आलमी गुर्बत का सबसे ज़्यादा शिकार कौन होता है? ज़राए दो ग्रोहों का ख़ास जिक्र करते हैं, बच्चे और ख़वातीन। कम आमदनी वाले ममालिक में लाखों बच्चे ग़िज़ाई क़ल्लत, बीमारियों, चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। और ख़वातीन? ख़वातीन आलमी गरीबों की अक्सरियत है, तकरीबन 70%। इसकी वजूहात में तालीम, रोज़गार के कम मौक़े, कमाई पर कंट्रोल ना होना, ज़मीन की मिल्कियत में फ़र्क, सेहत की सहूलियात की कमी, ये सब शामिल हैं। और ग़ुलामी भी अफसोसनाक तौर पर आज भी मौजूद है, मुख्तलिफ शक्लों में। इस आलमी अदम मसावात की वजूहात क्या बताई गई हैं? कई चीज़ें। टेक्नोलॉजी तक रसाई की कमी, आबादी में इजाफा, सनफी अदम मसावात और तारीख़ी तौर पर नो आबादियात, कॉलोनियलिज़म, और इसका नया रूप नो आबादियात, न्यू कॉलोनियलिज़म, मतलब अमीर ममालिक का गरीब ममालिक का इस्तेहसाल करना। इन वजूहात को समझाने के लिए क्या कोई बड़े नज़रियात हैं? जी, दो अहम नज़रियात का जिक्र है जिनके ज़ाविये मुख्तलिफ हैं। एक है जदीदियत का नज़रिया। ये कहता है कि गरीब ममालिक इसलिए गरीब हैं कि उनमें जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद सकाफती अक़दार की कमी है। रोस्टो ने इसके 4 मराहिल बताए थे। लेकिन इस पर तनकीद भी है। हाँ, कि ये मगरिब को मेयार समझता है, तारीख को नज़रअंदाज करता है और गरीबों को ही इल्ज़ाम देता है। और दूसरा नज़रिया? वो है इन्हिसारी नज़रिया, डिपेंडेंसी थियरी। ये बिल्कुल उल्ट कहता है कि गरीब ममालिक इसलिए गरीब नहीं कि वो जदीद नहीं, बल्कि इसलिए कि अमीर ममालिक ने उन्हें पसमानदा रखा है अपने फ़ायदे के लिए। वॉलरस्टाइन का वर्ल्ड सिस्टम मॉडल इसी का हिस्सा है। मरकज़, दायरा, नीम दायरा। जी, मरकज़ अमीर ममालिक, दायरा गरीब ममालिक जिनका इस्तेहसाल होता है। इस पर भी तनकीद है कि ये शायद ज़्यादा सादा कर देता है मामले को। लेकिन अच्छी खबर ये है कि मजमूई तौर पर आलमी गुर्बत कम हो रही है और औसत उम्र बढ़ रही है। आखिर में सियासत का जिक्र भी ज़रूरी है। ताकत की तकसीम का ताल्लुक इसी से है। बिल्कुल, सियासत वो इदारा है जो ताकत की तकसीम और फैसले करने को मुनज़्ज़म करता है। मैक्स वेबर ने इख्तियार यानी अथॉरिटी की 3 किस्में बताई थीं। रिवायती, अक़ली कानूनी और करिश्माती। जी, जो हुकूमत की मुख्तलिफ शक्लों बादशाहत, जमहूरियत, आमरियत से जुड़ी हैं। अमेरिका जैसे जमहूरी माशरे में ताकत कैसे तकसीम होती है? क्या सबके पास बराबर ताकत है? इस पर मुख्तलिफ नज़रियात हैं। तकसीरी मॉडल कहता है ताकत फैली हुई है, मुख्तलिफ ग्रोह मुकाबला करते हैं। ताकतवर अशराफिया मॉडल कहता है नहीं, असल ताकत चंद फौजी, सियासी, कारपोरेट रहनुमाओं के पास है। और मार्क्सिस्ट मॉडल? वो कहता है असल ताकत माशी निज़ाम में है, सियासी निज़ाम तो बस अमीर तबके के मफाद देखता है। ज़राए ये नहीं कहते कि कौन सा सही है, ये बस मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। तो आज हमने मईशत, तबका, जिन्स, नस्ल, आलमी दर्जाबंदी, सियासत
इन सब पहलुओं का जायजा लिया। ये वाज़ेह है कि ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और हमारी जिंदगियों पर गहरा असर डालती हैं। हमारा मकसद था कि इन क्रैश कोर्स सोशियोलॉजी के ज़राए से अहम बातें सामने लाएं। और जो एक मजमूई तस्वीर बनती है वो ये है कि अदम मसावात के ये ढांचे कितने गहरे हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम तब्दीली चाहते हैं तो क्या सिर्फ इनफरादी कोशिशें या छोटी पॉलिसियां काफ़ी हैं, या फिर उन बुनियादी ढांचों को ही बदलने की ज़रूरत है। और शायद एक आखिरी सवाल, जी, अगर नस्ल, जिन्स, हत्ता के मैरिट जैसी चीज़ें भी समाजी तौर पर बनाई गई हैं, हाँ, तो क्या मुआशरा उन्हें शऊरी तौर पर ज़्यादा इंसाफ की तरफ दोबारा नहीं बना सकता? ये वाकई एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है। इस गहरी गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।